Hello students, today in our class we are going to understand place value system. Place value system. Now do you know why it is important to understand place value system? मैंने कई बार देखा है कि बच्चों को जब बड़े नंबर्स आ जाते हैं लाइक जैसे थाउजेंड में, लैक्स में, करोड्स में जब नंबर चले जाते हैं तो बच्चों को लिखने में काफ़ी डिफिकल्टी होती है। अगर आप ये प्लेस वैल्यू सिस्टम अच्छे से समझ लेते हैं तो नेक्स्ट टाइम आपको नंबर लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए समझते हैं प्लेस वैल्यू सिस्टम। प्लेस वैल्यू सिस्टम को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम, इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम एंड इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम। इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू system. As we are in fourth class, so we will study about only Indian place value system. अगर जब आप फिफ्थ क्लास में हो जाएंगे तो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम. Now in Indian place value system, methods are divided into four parts. Like divided into four parts, we can say in four periods. Like ones period. The second is thousand period. Third is lakhs period. And the last one is crore period. Ones period, thousand period, lakhs period and crore periods. Now in ones period, it will come ones, tens and hundred. Ones, tens and hundreds. In thousand period, thousand will come, thousand and 10,000. And in lakhs period, lakhs and 10 lakhs. And in crore period, crores and 10 crores will come. As you can see, place value system is divided into two parts. Indian place value system and international place value system. And international place value system. In this system, numerals are divided into four periods. Ones period, thousand periods, lakhs period and crore periods. अब इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम की हेल्प से हम कोई भी नंबर इजीली रीड कर सकते हैं और कोई भी नंबर इजीली हम लिख सकते हैं। वो कैसे करेंगे देखते हैं। Now you can see this is place value chart and with the help of this place value chart we can easily read and write numbers. Place value chart में क्या होता है कि हमने उन डिजिट्स को उनके प्लेस के अकॉर्डिंग रखते हैं। वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000, lakh, 10 lakh, crore, 10 crores. If I have a number 4, 3, 2, 1, 5, 6. अब हम इस नंबर को कैसे पढ़ेंगे? सबसे पहले हमें इस नंबर को पढ़ने के लिए हमें इसे प्लेस वैल्यू चार्ट में रखना होगा। जब भी हमें कोई नंबर रीड करना होता है तो हम उसको यहाँ से रीड करते हैं अपने लेफ्ट हैंड साइड से, ठीक है। और जब भी हमें नंबर कोई प्लेस वैल्यू चार्ट में लिखना होता है तो हम उसको अपने राइट हैंड साइड से लिखना शुरू करते हैं। 6 इन प्लेस ऑफ वंस, देन 5 इन प्लेस ऑफ टेंस, 1 in place of hundreds, 2 in place of thousand, 3 in place of 10,000 and 4 in place of lakhs. Now we can easily read this number 4 lakhs 32,156. 4 lakh 32,156. अगर मुझे अब इस नंबर में कोमा पुट करना है, क्योंकि कई सारे बच्चों को नहीं पता होता कि हम कोमा कहाँ पर पुट करें, तो मैंने जैसे आपको बताया था कि इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम में देयर आर फोर पीरियड्स. फर्स्ट इज वंस पीरियड, वंस, टेंस, हंड्रेड. नेक्स्ट इज थाउजेंड पीरियड, थाउजेंड, 10,000. थर्ड वन इज लैक्स पीरियड, लैक्स, 10 lakh.
and the last one is crore and 10 crore. So after 3 digit we will put a comma, and after that, then after 2 digit we will put a comma, and then again after 2 digit we will put a comma. So in this digit, after 3 digit, ones, tens, hundreds, after ones period we will put a comma, and then after 1000 periods, yes, after 1000 period, ones, tens. So here this is the number, and how will we read it? We'll read it 4 lakh 32,000 156. 56. And one more thing to notice here is we don't use plural like 10,000s. हम यहाँ पर thousands नहीं लिखेंगे. We will use only singular. 4 lakhs. We will not write it like 4 lakhs. No, we will use singular only. 4 lakh 32,000 only, not thousands. 100s, not hundreds. 4 lakh 32,156. Now let's take another example. अब बच्चों को प्रॉब्लम क्या आती है? बच्चों को मोस्टली प्रॉब्लम आती है जब भी हम उनको कोई नंबर डिक्टेट करते हैं तो वो क्या करते हैं, उसको गलत लिखते हैं. अब कैसे इसको ठीक लिखा जा सकता है? लेट मी टेक अनदर एग्जांपल. अगर मैं आपको डिक्टेट करती हूँ, मैं आपको बोलती हूँ यू हैव टू राइट 30 lakh 42,601. Then how will you write? 30 lakh. 30 lakh is given here. So we'll go to the periods of lakhs. Now 30 lakhs is given. How we can write 30? We'll write 30 like this. So in this period we will write 3 and 0. 30 lakhs 42,000. 42 can be written as like this. 42,601. यानी कि ये आएगा वंस पीरियड में. 601. 601. Let's take another example. If we have a number 5 lakh 320. Now if we have to write this number, तो इस नंबर को हम कैसे लिख सकते हैं? सबसे पहले हम देखेंगे 5 लाख. लाख यानी कि कौन से पीरियड में जाएगा? ये लाख वाले पीरियड में जाएगा. 5 लाख को कैसे लिखा जा सकता है? नंबर 5 को हम कैसे लिखेंगे? कई बच्चे क्या करते हैं, ये लाख वाले पीरियड में गए, यहाँ पे 5 लिख देते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं आया तो यहाँ पे 0 लगा देते हैं. नो, ये 5 नहीं है. ये क्या बन गया? दिस इज 50, बट वी हैव टू राइट 5 lakhs. 5 कैन बी रिटन एज 5. उससे पहले हम 0 लगा देंगे. दिस इज 5, दिस इज नॉट 5, दिस इज 50. सो 5 lakh. 5 इज दिस. लाख वाला पीरियड कंप्लीट हो गया. नेक्स्ट 321, यानी कि अब कौन सा पीरियड आ गया? 100 वाला, जो वंस पीरियड था. अब इसमें 1000 की इन्होंने बात की ही नहीं है. अगर हमारे पास 1000 पीरियड के लिए कोई नंबर नहीं है तो हम वहां पर क्या करेंगे? हम वहां पर 0 पुट कर देंगे. तो यहाँ हमने दोनों पीरियड्स में क्या कर दिया? इन दोनों कॉलम में हमने क्या कर दिया? 0 पुट किया. फिर हमारे पास नेक्स्ट नंबर है 321. 321. और अगर इस नंबर को हमें लिखना है 5 lakh 321, अगर इस नंबर में अब हमें कोमा पुट करना है तो हम कैसे करेंगे? फर्स्ट वी विल पुट कोमा आफ्टर वंस पीरियड, वंस, टेंस एंड हंड्रेड्स here, then after 1000 period here. So 1 2 3 and then comma 0 0 and then comma and 5. This is 5 lakh 321. Let's take another example. If the next number is 21 crore 3 lakh 25,201, इतना बड़ा नंबर है, ये नंबर हमें लिखना है तो कितना इजीली हम इसको लिख सकते हैं? सबसे पहले हम देखेंगे 21 करोड़ यानी कि कौन से पीरियड में जाएगा? लास्ट पीरियड में जाएगा. 21 करोड़. 21 कैन बी रिटन एज लाइक दिस 2 and 1. So in this period we will write 2 and 1. 21.
3 लाख, तो ये कौन से पीरियड में जाएगा, लैख वाले पीरियड में जाएगा। लेकिन थ्री कैसे लिखा जाता है, 0 and 3, सो विल पुट हियर 0 and 3 ओनली। ठीक है, इसको मैं मिटा देती हूँ, आपको आपका गलत ना हो जाए। नेक्स्ट 25,000, अब 1000 वाला भी हमें दे रखा है, तो 1000 वाले पीरियड में हम क्या लिखेंगे, 25 कैन बी रिटन एज लाइक दिस 25। देन 201, तो ये हमारा नंबर हो गया 21,03,25,201। अब इस नंबर में कॉमा पुट करना है, तो हम कैसे करेंगे, आफ्टर वंस पीरियड, यानी कि 3 डिजिट्स के बाद 1 2 3, देन आफ्टर 1000 पीरियड 2 डिजिट के बाद, देन आफ्टर लाख पीरियड, देन करोड़। सो द नंबर विल बी दिस इज द नंबर। इसमें हमें एक बात का ध्यान रखना है कि सबसे पहले हम कोमा पुट करेंगे 3 डिजिट के बाद, और फिर 2 डिजिट्स के बाद हम कोमा पुट करते रहेंगे। नाउ आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। कुछ और एग्जांपल्स ले लेते हैं, हमें अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम एक छोटा सा नंबर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ वी हैव टू राइट 4003। अच्छा, ऐसे नंबर लिखने में बच्चे बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। काफी बच्चे क्या करेंगे, इसको गलत ही लिखेंगे। अब इसको हमें कैसे लिखना है, विद द हेल्प ऑफ प्लेस वैल्यू चार्ट। 4003 ओनली, यानी कि इसमें हमें क्या है, वंस पीरियड दे रखा है और हमें 1000 पीरियड दे रखा है। तो वंस पीरियड में हमें दे रखा है सिर्फ 3, तो 3 हम कैसे लिखेंगे, 3 ऐसे लिखा जाता है। और मैंने आपको बताया कि 0 बाद में पुट नहीं करनी है, 0 पहले पुट करनी है। तो इस पीरियड में कितने नंबर्स लिखने होते हैं, कितने डिजिट्स लिखनी होती है, 1 2 3। एक तो हमें पता है 3, तो 3 कंप्लीट करने के लिए हम इसके आगे क्या कर देंगे, 2 0 पुट कर देंगे। नाउ दिस इज 4000। अब ये 1000 वाले पीरियड में मुझे लिखना है, 1000 वाले पीरियड में मुझे लिखना है। अब यहाँ पे 4000 लिखना है ओनली। तो अगर मैं ऐसे लिखूंगी तो ये हो जाएगा 40, लेकिन मुझे लिखना है 4000, यानी कि ऐसे। तो जो 1000 वाला पीरियड आएगा उसमें लिखा जाएगा 0 4, और जो ये 3 वाला पीरियड है, जो वंस वाला पीरियड, इसमें कैसे लिखा जाएगा, 2 0 and 3। नाउ द नंबर इज 4003, और हम इसमें कॉमा कैसे, एंड देन कॉमा 1, सो द नंबर विल बी 4003। लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। 20,04,003। हाउ वी विल राइट दिस नंबर, 20 लाख, यानी कि लैक्स के पीरियड में क्या है, 20 हम कैसे लिखेंगे, ऐसे। 4000 यानी कि 1000 के पीरियड में क्या लिखना है, हमें 4 लिखना है। और 3 जो वंस का पीरियड है उसमें हमें सिर्फ 3 लिखना है। अब देखो ये 20 लैक्स के पीरियड में कितने हैं, 2 कॉलम है, तो 20, 2 and 0 हम यहाँ पर लिख देंगे। 4000 वाले पीरियड में 2 कॉलम है, लेकिन यहाँ पे लिखा है 4000। अगर मैं लिखती हूँ ऐसे तो ये हो गया 40, लेकिन मुझे ऐसे नहीं लिखना है। 4000, मैंने आपको पहले बताया था हम 04 लिख सकते हैं, 04 का मतलब भी 4 होता है। 4000 मैंने लिख दिया। नाउ 3 जो वंस का पीरियड है उसमें केवल हमें 3 दे रखा है। अगर मैं यहाँ पे 3 लिख के बाद में 2 0 लगाती हूँ, इट बिकम्स 300, बट वी हैव टू राइट ओनली 3। सो मैं 3 से पहले 2 डिजिट 0 लगा देती हूँ, तो 0 0 and 3। सो दिस इज द नंबर 20,04,003, 20,04,003। अब हमें इसमें कोमा पुट करना है, तो कोमा कैसे पुट करेंगे, आफ्टर वंस पीरियड 1 2 3, 3 डिजिट्स के बाद एक कोमा, 2 डिजिट्स के बाद एक कोमा, एंड दिस। सो द नंबर विल बी 20,04,003। क्लियर। अब आप कोई भी बड़े से बड़ा नंबर अपने प्लेस वैल्यू चार्ट की हेल्प से इजीली लिख सकते हैं। हम एक और बड़ा नंबर ले लेते हैं, 29,02,03,426। अब इतना बड़ा नंबर हम देख के ही घबरा जाते हैं, लेकिन देखो कितना इजीली हम लिख सकते हैं। 29 करोड़, तो हम क्या करेंगे, जो करोड़ वाला ये पीरियड है इसमें क्या लिखना है हमें, 29। तो यहाँ पे मैं छोटा सा लिख देती हूँ, ये पीरियड हमारा कंप्लीट हो गया 29। 2 लाख, जो लाख वाला पीरियड है उसमें हमें क्या लिखना है, 2। तो 2 के सामने एक 0 लगा देंगे, क्योंकि 2 के बाद लगाएंगे तो वो 20 बन जाएगा। 2 लाख। नाउ 3000, जो 1000 वाला पीरियड है उसमें हमें लिखना है 3।
तो यहाँ पे मैं एक 0 लगा देती हूँ, क्योंकि अगर मैंने पीछे लगाया दैट तो वो क्या हो जाएगा 30, लेकिन हमें लिखना है 3 ओनली। नेक्स्ट इज 426। अब जो वंस वाला पीरियड है उसमें लिखना है 426। सो इट्स वेरी इजी। तो हम कैसे लिखेंगे 29 करोड़, तो पहले करोड़ वाला कॉलम लिख देंगे 29, ये हमने कंप्लीट किया। 2 लाख, 2 लाख, अब लाख वाला जो पीरियड है वो कंप्लीट करेंगे 2, 0 एंड 2। नेक्स्ट 3000, तो 1000 वाला कॉलम करेंगे 3000 है ये। अगर मैं ऐसे लिखती 3 एंड 0 तो ये क्या बन जाता 30, लेकिन हमें लिखना है 3000। सो इट विल बी लाइक दिस 3000 एंड 4 6। अब हमें कोमा पुट करना है, इट्स वेरी इजी। कोमा हम कैसे करेंगे, पहले वंस पीरियड के बाद, वंस पीरियड में क्या क्या आता है, वंस, टेंस एंड हंड्रेड। सो आफ्टर 3 डिजिट comma, then after 2 digit comma, then after 2 digit comma। आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा कि कोई भी बड़े से बड़ा नंबर हम कैसे लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम जब भी आएंगे, नेक्स्ट जो वीडियो बनेगा उसमें मैं कुछ और एग्जांपल लेके आऊंगी जिसमें बच्चों को काफ़ी डिफिकल्टी होती है नंबर्स लिखने में। तो ऐसे ही और ज़्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपके लिए मैं कुछ और वीडियोस लेके आऊँगी। आपको जब वो वीडियोस आएंगी तो नोटिफिकेशन में पता चल जाएगा, आप वहाँ से डायरेक्ट जाकर देख सकते हैं। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय, टाटा, टेक केयर।